بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا کیمسٹری ٹیچر احسن افروز، کلاس نحم کیمسٹری باب نمبر 1۔ آج ہم پڑھیں گے آئنز کنہیں کہتے ہیں۔ مثال کی مدد سے سمجھیں گے کہ آئن کیا ہوتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، اور چارج کی نوعیت کے لحاظ سے آئنز کی کتنی اقسام ہیں، اور پھر تفصیلاً سمجھیں گے کہ کیٹائنز اور اینائنز ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں گلاس بورڈ کی طرف۔ آئنز کی سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں۔ آئنز کہتے کنہیں ہیں؟ ایٹم یا ایٹمز کا مجموعہ جس پر پازیٹیو یا نیگیٹو کوئی بھی چارج ہو آئن کہلاتا ہے۔ ایٹم یا ایٹم کا مجموعہ، ایک ایٹم بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ ایٹم بھی ہو سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ ان کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ کوئی نہ کوئی چارج ہونا چاہیے۔ وہ چارج کوئی نیگیٹو چارج ہو سکتا ہے، وہ چارج کوئی پازیٹیو چارج ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی ایک ایٹم یا ایک سے زیادہ ایٹم کے ملنے سے بنا ہوا ایٹمز کا مجموعہ، ایک گروپ جس کے اوپر کیا ہوگا؟ پازیٹیو یا نیگیٹو چارج ہوگا، وہ گروپ یا وہ اکیلا ایٹم، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ آئن بولیں گے۔ مثال سمجھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئن بنتا کیسے ہے۔ بننے کا عمل کیسے بنے گا؟ کیا ہوگا؟ جب بھی کوئی اسپیشی، مطلب وہ اسپیشی ایٹم بھی ہو سکتی ہے، ایٹم کا مجموعہ بھی ہو سکتی ہے، جب بھی کوئی اسپیشی ایک یا ایک سے زیادہ الیکٹرانز خارج یا جذب کرتی ہے تو آئن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی اسپیشی ایک یا ایک سے زیادہ الیکٹران خارج کرے گی یا جذب کرے گی، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایٹمز یا ایٹمز کا مجموعہ جس کے اوپر کیا موجود ہو؟ کوئی نہ کوئی چارج ہو۔ اور کسی بھی ایٹم کے اوپر، کسی بھی اسپیشی کے اوپر چارج کب آئے گا؟ جب وہ اسپیشی، وہ ایٹم الیکٹران یا تو حاصل کرے گا یا اپنے میں سے نکال دے گا۔ انہی دو صورتوں میں کسی اسپیشی کے اوپر، ایٹم کے اوپر چارج آ سکتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ پھر کیسے بنے گا آئن؟ کہ جب بھی کوئی اسپیشی کیا کرے گی؟ ایک یا ایک سے زیادہ الیکٹران یا تو خارج کر دے گی یا جذب کر لے گی، تو اس کے نتیجے میں اس کے اوپر چارج آ جائے گا، اور وہ کیا کہلائے گا؟ آئن کہلائے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کوئی ایک دو مثالیں بتاتا ہوں آئن کو سمجھنے کے لیے۔ ہمارے پاس ہے ہائیڈروجن آئن، جس کو میں لکھتا ہوں H پازیٹیو، یا میں لکھ سکتا ہوں ہائیڈروجن کے علاوہ سوڈیم آئن۔ سوڈیم آئن کو میں لکھتا ہوں Na پازیٹیو، یا میں لکھ سکتا ہوں کلورائڈ آئن۔
क्लोराइड आयन को लिखा जा सकता है Cl नेगेटिव, या मैं लिख सकता हूं ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन को लिखा जा सकता है O2 नेगेटिव। तो कोई भी एटम, सिंगल एटम या एक से ज़्यादा एटम्स का मजमूआ भी हो सकता है। ये मैंने सारी मिसालें आपके सामने जो रखी हैं, ये सिंगल एटम, एक एटम्स की मैंने रखी हैं। एक दो मिसालें मैं ऐसी भी देता हूँ जिनमें एटम्स का मजमूआ है जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद है। जैसे कि मैं कहता हूँ सल्फेट आयन। अब सल्फेट आयन के ऊपर इसको मैं लिखता हूँ SO4 2 नेगेटिव। तो मतलब ये एक एटम नहीं है, सल्फर ऑक्सीजन के 4 एटम इनके मिलने से बना हुआ ये एक पूरा ग्रुप है। ये एटम का एक मजमूआ है जिसके ऊपर क्या मौजूद है, कोई चार्ज मौजूद है। तो ये आयन कहलाएगा, सल्फेट आयन। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं अमोनियम आयन, लिखा जा सकता है अमोनियम आयन। इसको मैं लिखता हूं NH4 पॉजिटिव। तो ये एक एटम नहीं है, एक से ज़्यादा एटम्स का एक ग्रुप है, एटम्स का एक मजमूआ है जिसके ऊपर क्या मौजूद है, कोई चार्ज मौजूद है। तो एक अलहदा एटम या एटम्स का मजमूआ जिसके ऊपर क्या मौजूद हो, कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो, वो क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। और कैसे बनेंगे, जब भी कोई स्पीशी एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी या जज़ब करेगी तो वो क्या बनाएगी, आयन बनाएगी। मसलन ये हाइड्रोजन आयन कैसे बना, जब, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव 1, तो ये चार्ज कैसे आया, जब हाइड्रोजन ने क्या किया। मैं चंद एक मिसालें आपको जो है वो कीमियाई मसावात की शक्ल में दिखाता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकल जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव 1, तो ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ नेगेटिव वाले में से किसी एक की, तो ये क्लोराइड है, क्लोरीन है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगी तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव, ये चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। तो इस तरह से हमारे पास आयन बनते हैं जब भी किसी न्यूट्रल एटम में से, न्यूट्रल स्पीशी में से या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाएगा, तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा और वो किस में तब्दील हो जाएगा, आयन के अंदर तब्दील हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। अगर हम बात करें कि आयंस की इकसाम कि कितनी किस्म का आयन होता है, तो चूंकि आयंस ऐसी स्पीशीज हैं जिनके ऊपर चार्ज होगा, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, तो इस लिहाज से आयंस की इकसाम कितनी बनेंगी, 2। आयंस चार्ज की नौयत के लिहाज से दो तरह के होते हैं। चार्ज की नौयत के लिहाज से दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, दो इकसाम आयंस की कौन कौन सी हैं, केटाइंस पहली किस्म, और दूसरी किस्म एनाइंस। ये दो तरह के आयंस होते हैं चार्ज की नौयत के लिहाज से। अब ज़रा इन दोनों तरह के आयंस को तफसीलन समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, क्या चार्ज होता है, वगैरह वगैरह। तो इकसाम कितनी है, 2 हैं, एक कीटाइन और दूसरा एनाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों की तारीफ से आगाज़ करते हैं। देखते हैं कि केटाइंस क्या होते हैं, ये किस तरह के आयंस हैं, और एनाइंस किस तरह के आयंस हैं। ऐसे आयंस, ऐसे आयंस जिन पर पॉजिटिव
चार्ज मौजूद हो केटाइंस कहलाते हैं। ऐसे आयंस जिन पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, वो क्या कहलाएंगे, केटाइंस कहलाएंगे। इसके बरक्स एनाइंस किस तरह के आयंस होंगे, ऐसे आयंस, भाई आप पहली डेफिनेशन से दूसरी डेफिनेशन, पहली तारीफ से दूसरी तारीफ समझ सकते हैं। ऐसे आयंस जिन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद हो एनाइंस कहलाते हैं। ऐसे आयंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा केटाइंस, ऐसे आयन जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा एनाइन। ये तो हमने तारीफ के एतबार से दोनों के अंदर फ़र्क किया कि केटाइन और एनाइन क्या होता है। दूसरे नंबर पर अगर हम आगे चलें तो इनके बनने के अमल के लिहाज से ज़रा इनमें फ़र्क करते हैं कि कैसे बनेंगे, दोनों में बनने का अमल एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है। पहले हम बात करते हैं केटाइन की, कि केटाइन कब बनेगा। जब भी कोई न्यूट्रल एटम एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खारिज करेगा तो केटाइंस बनेंगे। जब भी कोई न्यूट्रल एटम एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, खारिज, तो केटाइन बनेगा। इलेक्ट्रॉन के एटम में से, स्पीशी में से निकल जाने के नतीजे में एटम के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो क्या कहलाता है, केटाइन। इसके बरक्स एनाइन कैसे बनेगा, अब हमें पता चल चुका है। जब भी कोई एटम एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जज़ब करेगा तो एनाइंस बनेंगे। आसान सी बात है, जब भी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो केटाइन बन गया, एटम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ गया। जब भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन दाखिल हो गया एनाइन बन गया, एटम के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ गया। ये तो हमने दोनों के बनने के अमल को समझा। इससे आगे चलते हैं, हम इसी बात को कीमियाई मसावात से समझने की कोशिश करते हैं, केटाइन के लिए भी और एनाइन के लिए भी, और इस मसावात से हम इसकी मिसालों का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। ज़रा दोनों में एक फ़र्क कर लेते हैं इनकी मिसालें लेकर, कुछ मिसालें केटाइन की और कुछ मिसालें एनाइन की। मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन आयन की, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो कैसे पॉजिटिव चार्ज आया, जब हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। जब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव 2। जब एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 3 चार्ज आ गया। मैं बात कर, ये केटाइन बन गए, हाइड्रोजन आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ये तीनों केटाइंस हैं क्योंकि इनके ऊपर चार्ज कौन सा है, जमा। मैं बात करता हूँ एनाइंस की। जब भी फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव 1। इसी तरह से जब भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 2 नेगेटिव। इसी तरह से नाइट्रोजन
جب 3 الیکٹران جذب کرے گا تو اس کے اوپر چارج آ جائے گا 3 نیگیٹو. نائٹروجن جب 3 الیکٹران جذب کرے گا تو اس کے اوپر چارج آ جائے گا 3 نیگیٹو. تو یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے کیٹائنز کی رکھی ہیں اور کچھ مثالیں آپ کے سامنے انائنز کی ہیں. کیٹائنز جن کے اوپر چارج کیا ہے پازیٹیو اور انائنز جن کے اوپر چارج کیا ہے نیگیٹو. اگر میں بات کروں کہ کیٹائنز کا بننا کس طرح کا عمل ہے، بننے کے عمل سے مراد تھا کہ کب بنتا ہے، کیسے بنتا ہے. یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں کہ نیچر، یہ جو عمل ہوا ہے الیکٹران خارج کر دینے سے کیٹائن کے بننے کا، الیکٹران جذب کرنے سے انائن کے بنے گا، اس عمل کی نیچر کیا ہے. میں ذرا نیچر کی بات کرتا ہوں. نیچر سب سے پہلے کیٹائن کا بننا یہ کس طرح کی نیچر رکھتا ہے. تو کیٹائن کے بننے کا عمل یہ ہوتا ہے اینڈوتھرمک. اس کی نیچر کیسی ہے اینڈو تھرمک. اب اینڈو تھرمک سے کیا مراد ہے یہاں پہ. اینڈو کا مطلب ہوتا ہے، اینڈو مطلب اندر، اور تھرمک اس کا مطلب ہوتا ہے ٹمپریچر یا ہیٹ. تو ایسا عمل جو ہوتے دوران کسی سسٹم کے اندر ہیٹ جذب ہوتی ہے، وہ عمل وہ اینڈوتھرمک کہلاتا ہے. تو کیٹائن کب بن رہا ہے؟ جب ایٹم میں سے الیکٹران خارج ہو رہا ہے. بھئی اگر آپ ایٹم میں سے الیکٹران خارج کر رہے ہیں تو بدلے میں اس کو کچھ تو دیں گے، ایسے تو ایٹم اپنا الیکٹران جانے نہیں دے گا. تو بدلے میں آپ کو کیا دینی پڑ رہی ہے ہیٹ، مطلب انرجی، درجہ حرارت. آپ ایٹم کو انرجی دیتے ہیں، ہیٹ دیتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ اپنا الیکٹران خارج کر دیتا ہے اور کس میں تبدیل ہو جاتا ہے کیٹائن کے اندر. تو کیٹائن کا بننا کیسا عمل ہوا؟ ایک اینڈوتھرمک عمل ہوا. ہم دیکھتے ہیں انائن کا بننا کیسا عمل ہے. یونی نیگیٹو آئن کا بننا ایگزو تھرمک ہوتا ہے. کون سے آئن کا بننا؟ یونی نیگیٹو. اب یونی نیگیٹو سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یونی نیگیٹو، اگر میں یونی نیگیٹو کی بات کر رہا ہوں، یونی کا مطلب ہوتا ہے ایک. ایسا آئن جس پر نیگیٹو چارج تو ہو لیکن کتنا نیگیٹو؟ صرف ایک نیگیٹو. مطلب جیسے کہ یہ فلورین ہے، فلورین نے ایک الیکٹران جذب کیا اور اس کے اوپر چارج آ گیا نیگیٹو ایک. یہ ایک لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو نیگیٹو ایک. تو اس طرح کے آئن کا بننا جس پر ایک نیگیٹو چارج ہو، اس طرح کے آئن کا بننا کیسا عمل ہوتا ہے؟ ایگزو تھرمک. اب یہ ایگزو تھرمک سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ ایگزو تھرمک کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ ایگزو کا مطلب ہوتا ہے باہر، اور تھرمک ابھی آپ نے پڑھا، اس کا مطلب ہے ہیٹ. ایسا عمل جس کے دوران ہیٹ سسٹم سے، ایٹم سے باہر خارج ہوتی ہے، وہ ایگزوتھرمک کہلاتا ہے. اس کا مطلب جب ہم کسی ایٹم کے اندر، کسی نیوٹرل اسپیشی کے اندر ایک الیکٹران داخل کرواتے ہیں تو اس ایک الیکٹران کو جذب کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے سسٹم، ایٹم یا نیوٹرل اسپیشی ہمیشہ کیا کرتی ہے؟ انرجی کو خارج کرتی ہے، ہیٹ کو خارج کرتی ہے. انرجی خارج ہوگی، یہاں سے انرجی خارج ہوگی اور اس کے اوپر چارج کیا آ جائے گا؟ نیگیٹو ایک چارج آ جائے گا، لیکن صرف نیگیٹو ایک. اگر میں اس کی بات کروں نا آکسیجن کی، تو جب میں نے آکسیجن کے اندر پہلا الیکٹران داخل کیا تو یہی عمل ہوا، کیونکہ پہلا الیکٹران داخل کرنے پر بھی آکسیجن کے اوپر چارج کیا ہے؟ نیگیٹو ایک چارج آیا. یہی عمل ہوا جو آپ نے یہ پڑھا
लेकिन जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन दाखिल करूंगा, ये ऑक्सीजन दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही जज़ब करेगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को दाखिल करवाने के लिए और ऑक्सीजन को दूसरे इलेक्ट्रॉन को जज़ब करने के लिए साथ साथ एनर्जी भी दरकार होगी। पहला इलेक्ट्रॉन जज़ब करने के लिए ऑक्सीजन ने खुद एनर्जी दे दी, खारिज कर दी, तो अमल कौन सा हो गया? एक्सोथर्मिक। लेकिन जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दाखिल किया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दाखिल करते दौरान हमें साथ एनर्जी भी देनी पड़ी। तो जब हम खुद एनर्जी भी दे रहे हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का अमल आ गया, इस तरह की नेचर आ गई। और ये नेचर क्या थी? एंडोथर्मिक, जिसमें हमें खुद एनर्जी देना पड़ती है, एनर्जी एटम या सिस्टम के अंदर दाखिल होती है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ यूनी नेगेटिव आयन का जो बनना है वो किस तरह का होता है? एक्सोथर्मिक। यूनी नेगेटिव आयन का बनना एक्सोथर्मिक होता है। जबकि अगर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाए, 3 नेगेटिव चार्ज आ जाए, 4 नेगेटिव आ जाए, या कोई भी यूनी के अलावा, एक के अलावा अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो नेगेटिव चार्ज लाने के लिए हमें साथ साथ एनर्जी भी देना पड़ती है। इसका मतलब कि वो अवामिल सारे कैसे होते हैं? एंडोथर्मिक। तो केटाइंस जितनी भी तरह के बन रहे हैं वो सारे के सारे एंडोथर्मिक अमल के जरिए बन रहे हैं। एनाइंस जितनी भी तरह के बन रहे हैं सारे के सारे एंडोथर्मिक अमल के जरिए बन रहे हैं, सवाए किसके? यूनी नेगेटिव आयन के। यूनी नेगेटिव आयन सिर्फ और सिर्फ किस अमल के जरिए बनेगा? एक्सोथर्मिक अमल के जरिए बनेगा। यहां पे मैं एक बात और आपको बताता चलूं कि हम केटाइंस को केटाइंस का नाम क्यों देते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज वालों को ही केटाइंस का नाम क्यों देते हैं, नेगेटिव चार्ज वालों को ही एनाइंस का नाम क्यों देते हैं? उसकी एक वजह है, और वजह ये है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं तो वहाँ हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होता है। उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में 2 मेटल के रॉड्स होते हैं जिनको हम बैटरी के साथ जोड़ते हैं। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, एक मेटेलिक रॉड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इन मेटेलिक रॉड्स को इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर डुबो दिया जाता है। जैसे हम करंट गुजारते हैं इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में से तो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस के अंदर तब्दील हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस के अंदर तब्दील होता है तो जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं। पॉजिटिव आयंस कहाँ पे जाके इकट्ठे होते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो क्या कहलाता है? कैथोड। और कैथोड के ऊपर कौन से आयंस आ रहे हैं? पॉजिटिव आयंस। नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है? कैथोड। और वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के कौन से आयंस आ रहे हैं? पॉजिटिव। अब चूंकि पॉजिटिव आयंस कैथोड के ऊपर आ रहे हैं, इस वजह से हम पॉजिटिव आयंस को कैथोड से केटाइंस का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पर जो नेगेटिव आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, वो कहाँ पे जाते हैं? एनोड के ऊपर, जो पॉजिटिव टर्मिनल है। अब चूंकि नेगेटिव आयंस एनोड के ऊपर जाते हैं, इस वजह से नेगेटिव आयंस को हम क्या नाम देते हैं? एनायंस का नाम देते हैं। अजीज़ तलबा तालिबात, आज के लेक्चर में आपने तफसीली समझा आयन के बारे में। मैंने कुछ ऐसी बातें भी आपको बताई जो हमारे टेक्स्ट के अंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन आयन को समझने के लिए, इसकी बुनियाद बनाने के लिए अपने जहन के अंदर ये सारी बातें ज़रूरी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।